کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو دب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ بھیا بچے تم سمجھ رہے سبحان اللہ کے معنی؟ بولنا نہیں، چپ کے بیٹھو۔ جتنے ادب کے ساتھ سنو گے اتنا ہی فائدہ کرے گا، اور بے ادبی سے تو واویلا میں سب چلا جائے گا، اب تو اسی میں جاتا ہے۔ مجلسوں کی قدر کرو۔ جو حضرات باہر دور دور تک کھڑے دکھائی دیتے ہیں روڈ کے اوپر، اگر ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی گزارش ہے مجلسوں کی قدر کر لو۔ ناقدری کی بنیاد پر کئی سال تک مسجدیں بند رہی ہیں، اجلاس نہیں ہو سکے ہیں، چاہت کے باوجود اکٹھا نہیں ہو سکے ہیں۔ مجلسوں کی ناقدری نہ کرو۔ جن جن چیزوں کی ناقدری ہوئی ہے وہ چیزیں ہاتھ سے گئی۔ اللہ ہر چیز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے کابل کا ذکر کیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے 500 برس اللہ کی عبادت کی، ایک کشتی خریدا، کشتی میں بیٹھ کر کے دریا میں سفر کر لیا، جہاں پر ٹیلا نظر آیا وہیں کو کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح عبادت اور صحیح تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا تم لوگ تو موبائل رکھ لیجیے، اب رکھ لیجیے، اس میں ہے وہی سنیے کا بات ہے، رکھ لیجیے، اور اس کو کرنا ہے تو دائیں بائیں چلے جائیے، سب نہ کیجیے۔ صرف موبائل کی دین ہے، 80% طلاقیں ہوتی ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوان گاڑی کے نیچے آ گئے، کتنے بیچارے چلتے چلتے دنیا ہی چلے گئے۔ اب اس کو چھوڑ کر بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ موبائل نے جو نقصان پہنچایا اتنا نقصان تو ناسور نے نہیں پہنچایا۔ ناسور بھی تھوڑا ٹائم دیتا ہے، موبائل نے کوئی ٹائم ہی نہیں دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے گناہ کی حالت میں یوں ہی چلے گئے، کام میں ڈٹیاں لگائے برابر گانا سنتے چلے گئے، راستے میں گاڑی نے ٹکر مارا، گھر والے آ کے اٹھا لے گئے، نہ جانے کتنے اٹھائے گئے۔ بڑا نقصان ہے بھائی اس سے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل کی ان باتوں کے تعلق سے اللہ کیا پوچھا جائے گا۔ آج نظریں کتنی خطا کرتی ہے، ہماری آپ کی اپنی کمی ہے، ہماری کوئی جاگیر ہے، پراپرٹی ہے نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، اور آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ جانتا۔ رات میں گئے، بستر پہ گئے، چادر اوپر ڈال لیا، موبائل میں جٹ کے برابر نظارہ کر رہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر نظروں کو غیر محرم پر ڈالا ہے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑے گا، ساری رات تو اسے گناہ میں گزر جاتا ہے۔ اگر ایسے موت آ گئی تو اللہ کے بارگاہ میں زانی بن کر حاضر ہوتے، زناکار بن کر حاضر ہوتے۔ اللہ صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی ہیں یہ نظریں جن کو بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ ان نظروں نے کتنوں کو دیکھا ہے، نہ جانے کتنے نقشے موجود ہیں، قرآن کی آیتیں اور اس کی صورتیں موجود ہیں، نہ جانے کتنے مکانات موجود ہیں، کتنا کچھ اس خزانے میں موجود ہے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد سے پیدائش تک، بڑھاپے تک، نہ جانے کتنی چیزیں، موت تک کی نہ جانے کتنی چیزیں اس خزانے میں محفوظ ہے۔ ایمان والوں، شمع رسالت کے پروانوں، نوجوانوں، ان آنکھوں کی قدر کرو۔ ان آنکھوں کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ اس میں کچھ کو بگاڑ ہو، ان کی قدر کیجیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ اور کان اور دل
इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद, बेशक ये कान और आंखें और दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला, इनके बारे में भी पूछा जाएगा और अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह से कोई भागना चाहे, ऐनल मफर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह से कहीं अलग भागने का कोई ठिकाना भी नहीं है, जाना होगा अल्लाह के सामने ही। तो अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भाई, दुनिया में जो नजरों की हिफाजत कर लेगा, मैदान क़यामत में हिसाब व किताब के बाद, जन्नत में दाखिला के बाद बार बार इरशाद बारी होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, जन्नती जन्नत चले गए, जहन्नमी जहन्नम चले गए। अल्लाह की तरफ से बार बार तकाजा होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। वहां भी मोहताजगी होगी, लोग लोगों से कहेंगे क्या मांगे, आपस में बात करेंगे क्या मांगे अल्लाह से, और अल्लाह की तरफ से बार बार हुक्म होगा, तकाजा होगा कि ए बंदो तुम मांग लो। एक बात याद रखिएगा, उलमाए रब्बानीन, उलमा की तादाद जो स्टेज पर है और है, खुदावंद कुद्दूस इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। और जो मोबाइल को क्या कहते हैं भैया, जिससे हम निकालते हैं बातें, गूगल, हाँ वही वाला, उससे मसला पूछा करते कैसे क्या करेंगे, फौरन गूगल मंगाया। अगर गूगल तो रोड बताएगा, सड़क बताएगा, ट्रेन बताएगा, दीन की बात गूगल नहीं बताएगा। महा बिल्कुल बेवकूफ आदमी भी उसमें अपनी बातें डालकर इधर उधर कर देता है। उसको कोई अच्छा आदमी होता है, वो कहेगा भाई फला चीज का मसला अब गूगल लिए बैठा है, गूगल ने हलाक कर दिया, अब तक कुछ बचाया नहीं है, बहुत तबाही तक लोग पहुंच गए, न जाने कितने मसाइल से दूर हो गए, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तय करो गूगल का सहारा न लेकर, उसमें बर्बाद न होकर, उलमाए रब्बानीन से राब्ता करके इनसे मसाइल पूछकर उस पर अमल करेंगे। अरे करेंगे, बोलो भैया इंशाअल्लाह। गूगल का चक्कर न कीजिएगा, न जाने कितने लोग राह भटक गए। अब वो पूछते हैं क्या बताओ मौलाना, टोपी लगाना सुन्नत जरूरी है या नहीं। एक साल मुझसे कहने लगे, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया, कहा कुछ बता दो। मैंने कहा कुरान मजीद से पूछो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मस्जिद, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर नमाज के लिए बेहतर लिबास में जाओ। उलमा फरमाते बेहतर लिबास में टोपी भी शामिल है, इसकी तफसीर में लिखा है उलमा ने। एक एक बात पूछते हैं, क्या करें, उसका जवाब पूछते हैं, गूगल से मंगाते हैं। हमें गूगल को क्या पता, खुद ही बेचारा पैदल है। अरे बोलो है कि नहीं, नौजवानों इधर देखो, तबाह तो बहुत हो चुके अब तक गूगल के सहारे। अब गूगल का सहारा न लिए भैया, दाढ़ी वाले हाफिज जी इधर देखो, उधर बाद में देखिएगा, अभी हमको दिखाई बहुत पड़ता है। मुफ्ती सईद साहब से बात हो, मैंने कहा बुढ़ापा का कहा कितना, मैंने कहा 93 साल में उम्र, तो कहा नहीं इतने में तो अभी तो शुरू है मामला। हाँ तो इतना रखो, दिखाई बहुत पड़ता है अभी। आप दाएं बाएं देखो तो फौरन मुझे दिखाई पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, लिहाजा पूरी तवज्जो इधर ही रखिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, लोग मसला पूछा करते, तो मैंने बताया अगर मस्जिद का मीनार न बनाया जाए तो नमाज का सवाब पूरा मिलेगा कि कट जाएगा। कहा मीनार से मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं, किसी मस्जिद का मीनार न बनाया जाए नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कहा मीनार न बनाया जाए तो मस्जिद की पहचान तुम बता दो। कहा तब तो यार पूछना ही पड़ता है गली गली, जिस महल्ले में जाओगे पूछोगे यहाँ मस्जिद कहाँ बनी हुई, बिल्कुल पड़ोस में है, करीब में है, तलाशते तलाशते तबीयत हरी हो जाएगी। लेकिन मस्जिद का पता रात में कौन बता देगा, अंधेरे में कौन बता देगा, बहुत सुबह कौन बता देगा। मैंने कहा मस्जिद का पता तो मीनार बताते हैं, टोपी का पता तो नमाजी का, तो नमाजी का हाल तो टोपी बताती है, और मुसलमानों का पता तो दाढ़ी बताती है। कहाँ तक आप फर्ज वाजिब पूछोगे। अल्लाह सही अमल, अरे बोलो भी ज्यादा ये सब न पूछा करो। मुझे एक शेर याद आया कि खिलाफे पैगंबर का सेरा गुज़ीद के हरगिज़ मंजिल नफाहत रसीद। अल्लाह के महबूब के तरीके के खिलाफ चाहे जितना कोई कमाली बन जाए, जमाली बन जाए, चाहे जितना कुछ हो जाए, असल मंजिल मंजिले मकसूद यानी जन्नत को नहीं पहुंच पाएगा। जन्नत
تک کی رسائی کے لیے طریقہ چاہیے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے بولو بھائی، تو طے کرو سہارا کس کا لینا؟ ارے بولو بھائی، علماء کی زیارت کرنا ثواب، ملاقات کرنا ثواب، پاس میں بیٹھو گے اللہ میدان قیامت میں فرمائے گا تم سے کسی عالم سے دوستی یا تعلق تھا یا نہیں؟ اللہ جواب دے گا پروردگار ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پوچھا جائے گا واسطے سے کوئی تعلق، کسی عالم سے کسی کا تعلق رہا ہو، اس آدمی سے تمہارا تعلق رہا ہو؟ بندہ بولے گا پروردگار ایسے واسطے سے تو تھا لیکن ڈائریکٹ نہیں تھا، اس واسطے کی وجہ سے بھی اللہ رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ ان سے جڑو ایمان والو، دور دور نہ بھاگو اور ہر بات میں مسئلہ پوچھا کرو۔ جب شادی بیاہ کی بات آیا کرتی علماء کو درکنار کر دیا کرتے، کہتے آپ کی بات مسجدوں میں چلتی ہے، پڑھانے میں چلتی ہے، آج نکاح والے دن صرف نکاح تک چلے گی، باقی ہمارا خود کا معاملہ چلے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو تباہی کوئی باقی رہا ابھی؟ طے کرو شمع رسالت کے پروانوں، ایک ایک بات ہم علماء سے پوچھیں گے۔ جب نکاح کی باری آئے، جب پیغام کی بات آئے تو پوچھو کس طرح کیا کیا جائے، علماء تم کو جواب دیں گے کہ 10-5 لوگ 10-12 لوگ نہ جی مانے تو 15 چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ۔ میں فتویٰ نہیں بیان کرتا، میں سادہ بیان کر رہا ہوں، مسجد میں چلے جائے، مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ نماز کے بعد نکاح ہو جائے، اپنی بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آؤ، رات گزرنے کے بعد کچھ لوگوں کو کھلا دو، دعوت ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا سنت تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو اچھی بات ہے، لیکن میں بہت اثردار آدمی ہوں۔ اس نے برابر بتایا میں بہت اثردار آدمی ہوں۔ میں نے کہا کتنا اثر ہے؟ کہا لوگ مجھے بہت جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا کتنا؟ کہا مولانا ہمارے ہاں 7-8 چرخیں چلتی ہیں اور بڑا میں مالدار آدمی، پورے جوار کے لوگ جانتے ہیں میں بہت بڑا آدمی۔ میں نے کہا پگلے ہو پورے، ہمیں غبارہ تو اوروں بڑا دکھائی پڑتا ہے۔ جب تک غبارے میں ہوا موجود ہے لگے گا بہت بڑا بڑا ہائی فائی پھولا بڑا، کچھ دکھتا نہیں کرتا، بالکل پھولا پڑا ہے۔ جب غبارے میں تنکا لگ جائے، کانٹا ٹوٹ جائے، کہیں سوئی لگ جائے تو غبارہ لاپتہ ہو گیا، چچڑے ملتے ہیں باقی سب لاپتہ ہے۔ کون ہے بھیا؟ اللہ کی ذات باقی سب۔ ارے بولو بھائی کہ رستم اور سہراب نے اپنا دم غم خوب دکھایا تھا، رستم اور سہراب نے اپنا دم غم خوب دکھایا تھا، بنوائی شداد نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا۔ آج کہاں سلطانی ہے، آج کہاں سلطانی ہے، باقی صرف کہانی ہے، اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے، اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے۔ کوئی مال پر یا اپنے شہرت پر پھولے نہ، ایک منٹ میں اللہ دے دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے پیدل ہو گئے، صبح کے وقت امیر تھے شام کے وقت فقیر ہو گئے، نہ جانے کتنے۔ ارے بولو بھیا اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگا میں بڑا امیر آدمی، محلے کا مشہور آدمی، جوار کا میں مالدار آدمی گنا جاتا ہے۔ دوسرے دن پتا چلا اس ٹرک نے کسی بلورو کو ٹکر مارا، 3 ایسے ہی چلے گئے۔ مقدمہ جھیلتے جھیلتے طبیعت ہری ہو گئی۔ ملا بعد میں کہا مولانا کچھ دعا کرو۔ میں نے کہا ہائی فائی والی شادی کر لی تم نے بارات کے ساتھ؟ کہا مولانا بس دعا کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اور کہا میں نے 7 ٹرک کیا 14 ٹرک ہو جائے؟ کہا نہیں مولانا بڑا بگاڑ ہوا، بڑی تباہی آئی، 3 لوگ مرے ہیں ہماری گاڑی کے ٹکر سے، جھیلتے جھیلتے نہ جانے کہاں تک نوبت آئے، پورا فرنیچر دکھائی پڑا، پھٹے پرانے کپڑوں میں میلا کچلا جیسا کیسا۔ میں نے کہا یاد رکھو جو اللہ دینا جانتا ہے وہی اللہ لینا بھی۔ بڑا کون ہے؟ بڑا ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کے بعد ساری کائنات اور سارے جہان میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہر بات کس سے پوچھ کر بھیا ہر کام کریں گے؟
दुनिया में पूछने की जरूरत पड़ा करती। पैदाइश के बाद अजान और इकामत का मसला हुआ करता है, एक कान में अजान दूसरी में तकबीर हुआ करती। जब ये पढ़ने के लायक हो जाए उलमा का सहारा लेना पड़ता, जब इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे, उसके बाद जरूरत पड़ती जब निकाह की बारी आती उलमा की जरूरत पड़ा करती। जब ये मर जाए इंतकाल कर जाए तो नमाज जनाजा में उलमा की जरूरत हो, कुर्रा की जरूरत पड़ा करती। और इतना ही नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी जरूरत पड़ेगी। अरे बोलो भाई, ये बात मुझे चंद मिनट में अर्ज करनी है। बाबा थोड़ा सा आगे आ जाओ अपनी चप्पल के साथ, वरना चप्पल कोई कहीं उठा ले जाए मौके से दिक्कत होगी। मान लोग जुमे वाले बड़ी जल्दी सलाम फिर के चप्पल को पहले ध्यान रखते कौन चप्पल लेके भागना है अच्छी वाली। हर वक्त जो चप्पलें पैर में रहती है वो खुद ही पैर की नाम बताती है कि फला की चप्पल लेके तभी भूल करके अच्छी वाली भाग जाते हैं और भूल में कभी खराब वाली नहीं पहन जाते। तो बाबा घबराइएगा नहीं, अपनी चप्पलों के साथ आगे आइए। पीछे वाले इसलिए बेचारे नहीं मान रहे, कहीं ऐसा में कुछ उठा ले जाए पूरी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जो पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह की तरफ से तकाजा होगा, हुक्म होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब जन्नत में क्या मांगे भैया, बात समझ रहे नहीं? दुनिया में मांगने की बारी आए, जहाँ शादी की बात आई, अब शादी वाले दिन लड़की का बाप है, बेटा जो मांगना हो मांग लो। तो बहुत लोग मांगते मांगते बुलेट मांगते हैं। एक ने कहा बड़ी वाली बुलेट जो 2.5-3 लाख की, मैंने कहा लबला बहुत पूरे। अबे मांगा तो लड़की के बाप से मांगा, जिसने 22 साल 20 साल परवरिश के बाद खुद नहीं खाया, बेटी को खिलाया, खुद नहीं पहना, एक एक जोड़े पे 2-2 ईदें कर ली है, और तुम्हारी बेटी अपनी बेटी को खिलाया पिलाया पहनाया कपड़ा, और उसके बाद तुम गाड़ी मांगते हो, शर्म नहीं आए? जब इतने था तो कोई कमजोर साहब वो ले लेते, वो क्या कहते भैया जिसमें वो डालते हैं कटोरा, थैला ना बड़ा वाला महिला वाला, कोई भिखारी जा रहा चुपके से मांग लो उससे थैला, उसी का कटोरा मांग लो, गली गली चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा बुरा कौन है भैया? वो जो लड़की के बाप से मांगता है। अगर वो कह दे साहब जो मांगना हो मांग लो, आज खुशी वाला दिन, तो न जाने क्या क्या मांगते हैं। ऐसे मांगने वालों पर लानत हो। क्या हो कि जो चाहे मांग खुदा से, मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो बोलो किससे मांगना भैया? पहले तौबा कर लो कि हम लड़की के बाप से पूछे, यानी ससुर साहब से, फुसर साहब से कोई तकाजा, और उनके भाइयों को ना गांठ लेगा कि भाई साहब, बहुत लोग बहुत चकड़ होते हैं, उनसे नहीं कहेंगे, बीवी के भाई से कहेंगे कि भाई साहब हमारा गोल मोल कर देते, वही कम से कम कुछ मेहरबानी कर ली। गोलुआ बहुत बनते हैं बाद में, बहुत चुपके से, समझे नहीं? अल्लाह की तरफ से तकाजा होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। जन्नती कहेंगे क्या चीज मांगे? हर चीज तो है। अल्लाह ने पहले से वादा फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो कुछ दिल में आएगा वो सारा का सारा वहाँ मौजूद मिलेगा। आदमी को बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती कि उसको बुढ़ापा महसूस न हो। क्या नाम भैया? भाई इब्राहिम साहब, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए भाई, चलिए हमारे साथ, हम क्या बता रहे हैं। अच्छा, अरे बोलो भाई, आदमी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? चालाक हो तो बोलोगे बहुत बात, और होशियार बहुत हुआ। आदमी सोचेगा हमारी उम्र लगे कि बिल्कुल जवान है। एक आदमी हमारे यहाँ लखनऊ में महल्ले की मस्जिद में आता, नाम ले लेंगे दिक्कत हो जाएगी, उसकी उम्र 63-64 साल की हो रही, हमेशा वो काले करवाए रहता है। क्या कहते हैं जो लगाते हैं? हाँ बिल्कुल काला। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो कहा जायज है। तो मैंने पूछा कब? कहा बीवी कहे तब। मैंने कहा पूरा बौड़ा मैं, तुम्हारी उम्र 63-64 साल की है, और पीछे पीछे तुम्हारी बीवी भी 55 साल और 60 के दरमियान हो गई होगी, अब कौन सी बात है? कहा इजाजत हो। मैंने कहा ये इजाजत कब्रिस्तान तक चलेगी।
अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक आदमी का इंतकाल होने लगा, उसने लोगों से बताया जब मुझे नहलाने लगा, जब मुझे कफन पहना देना, मेरी दाढ़ी में चूना कोई चीज सफेद लगा देना जिससे लगे कि ये दाढ़ी सफेद है। तो चुनांचे उसके हुक्म के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक उसकी दाढ़ी को सफेद किया गया और वो बंदा कब्र में उतारा गया। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा मर रब्बुका, जोर से कहा। बंदा बोला जवाब सत्य है। कहा क्या मतलब? कहा मुझे मामला उल्टा नजर आता है। कहा तो उल्टा नजर आता है। उधर से पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या? मन नबीयुका, तेरा नबी कौन? यहाँ पर फरमाया कि इस कब्र से रोज़े अक़दस तक दिखाई पड़ता है और कब्र अतहर में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर दिखाई पड़ेगा। अच्छे अमान हो तो कह दोगे हमारे नबी। इधर उधर टहलते रहे दाएं पर, इनका उनका हीरो जीरो पीरो फलाने ढकाने, आदमी भूल जाएगा, कुटाई वहीं से शुरू हो जाएगी। अल्लाह सही ताल्लुक जोड़ने की, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। फरिश्ते ने जोर से पूछा मन रब्बुका, कहा मामला उल्टा दिख रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा जरा, 1 मिनट की बात है। कहा मामला उल्टा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा मामला। कहा नहीं, मैंने ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझ तक पहुंचाई गई कि सफेद बाल वालों पर अल्लाह को तरस आता रहमत। किस पर भैया? हाँ, रंगो न बनी होगा। कहा सफेद बाल वालों पर अल्लाह को तरस आया करता, रहम आया करता। अल्लाह अज़ाब देना चाहता, सफेद बालों की वजह से अल्लाह को रहम आता। अल्लाह को गैरत आती, मेरा बंदा बूढ़ा हो चुका, बाल पकड़ में क्या इसको अज़ाब। फरिश्ता कहेगा तुम्हारे बाल काले, तुम्हारे बाल सफेद वाले नहीं, ये तो चूना से सफेद किए गए। हाँ मैं नहीं जानता हूँ। मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिन, आका की बात पहुंची है, जो जिस कौम के मुशाबिहत अल्लाह जिस जैसा बनाए उसी में से उसका शुमार किया जाएगा। सफेद तो नहीं थे, सफेद किए गए। आवाज आई कि नहीं, मेरे बंदे के साथ नरमी का मामला करो, बालों को सफेद करके आया। अब जिसको देखो वही घोटे पड़ा। वो पूछते हैं कि साहब की इजाजत दी गई, तो मैंने कहा कब कब कहा बीवी कहे? मैंने कहा पूरे मक्का हो, बीवी कब कहे? जब बीवी की उम्र नहीं हो, तुम बिल्कुल उधारे हो चुके हो, तब उसको काला करके नहीं ने। तो हमने कहा तुम्हारी आज शादी? कहा शादी को तो 35 साल। मैंने कहा लगना को पूरे 35 साल गुजर गया, अब तक वो तौबा है या अल्लाह, पूरा गांठे पड़े। मैंने कहा दोबारा इजाजत का और इजाजत। मैंने कहा जब मुजाहिद कोई राहे खुदा में जाए ताकि दुश्मन समझे भी जवान है, उस वक्त इजाजत है, जब देखो तबे तंगे घूम रहे। मैंने कहा इस पर नहीं, इस पर तो लानत पक्की है बिल्कुल। अरे बोलो भाई, तो आदमी के दिल में रहा करता कि हमेशा मेरी जवानी महसूस हो, अगर लगे कि बिल्कुल आजे बिल्कुल 30 साल का जवान। अरे बोलो है कि नहीं? लेकिन दुनिया में आदमी कितना मोटे मामला। अरे एक साहब कह रहे थे कि मैं हफ्ते में 5 बार गाउन लगाता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? ताकि बिल्कुल कहा कि बिल्कुल लगे कि अभी हम नहीं समझे आप, लगे कि बिल्कुल, और पूरा बनगिनार लगता है देखने। नबी की सुन्नत हो चेहरे पर, उसकी महाकाला कूला आदमी हो, लेकिन अल्लाह के हबीब की सुन्नत हो तो चेहरे में रौनक होती है। अरे बोलो होती नहीं होती? न जाने कितने होंगे इसमें चेहरे पे रौनक हो। तो बाबा बैठे पीछे, उनसे पूछ लो, चेहरे पे रौनक दाढ़ी की वजह से होती है।
आदमी सोचता है बुढ़ापा महसूस न हो, जन्नत में तो आदमी की उम्र होगी 32 साल का जवान महसूस होगा, हमेशा इसी हाल में रहेगा। करोड़ साल जन्नत में रहेगा, 32 साल का ही जवान महसूस होता रहेगा। न उम्र जवानी आगे की तरफ बढ़ेगी न पीछे की तरफ, एक हद पर कायम रहेगा। ये बात सिर्फ जन्नत में मिलेगी। अब दुनिया में चाहे जितना जुगाड़ लगाते लगाते उम्र 40 बरस की हो गई, घोटते घोटते उम्र 50 बरस की हो गई। एक आदमी तकरीबन 65 साल का था, वो भी घोटोतन, उसकी खाल चमड़ा लटक रहा था। नाई बेचारा खींच खींच के परेशान था। तो मैंने कहा एक नाई हमारा मुल्लू है, मैंने कहा भाई जरा रहम खाओ, चमड़ा खींच खींच के सीधा करोगे इसका? तो कहा कि ऐसे शौकीन आदमी रोजाना यही करवाते हैं करके बिल्कुल लगे ना। तो मैंने कहा तो मुंह पूरा चौकी हुआ जा रहा, कहा ये ऐसे है नहीं तो भैया। अल्लाह अकबर, चेहरे पर झुर्रियां आई, चेहरे की रंगत बदलने लगी, खाल चमड़ा खींच गया। लेकिन अगर अल्लाह के हबीब की सुन्नत है चेहरे पर तो उसको ढके हुए है, बंद किए हुए, और चेहरा रौनक मालूम हो। अरे बोलो होगा नहीं, इससे बहस नहीं। तो कर रहा था अल्लाह क्या पूछा जाएगा जन्नत में, मेरे बंदो कुछ मांग लो। तो जन्नती कहेंगे हम क्या चीज मांगे, अब ये खुद से नहीं सोच पाएंगे। जितना दिल में आया सारी की सारी चीजें वहां मौजूद होंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। जन्नती मसेरी पे टेक लगा के बैठ जाएगा। सूरत दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अब जन्नती बैठा हुआ मसेरी के ऊपर सोने का डंडा हाथ में होगा, और सामने इसको पेड़ दिखाई पड़ेगा। पेड़ भी वो सोने चांदी के होंगे, उनका तना सोने चांदी का, उनकी डालें सोने चांदी की, उनके जड़ें सोने चांदी की। सोने चांदी से कम की कोई बातें जन्नत में नहीं। अरे बोलो भाई, ये सारा का सारा नजर आएगा, जन्नती देखेगा। जन्नती के दिल में आएगा मैं हूरों से इन फलों को नहीं तोड़वाऊंगा। सेब का पेड़ लगा हुआ, और इतने कमाल, 1 मिनट की बात है हजरत उलमा इकराम की मौजूदगी में अर्ज कर दूं कि जन्नत में आदमी एक लुकमा खाएगा, कितने भैया, एक लुकमा खाएगा उसमें 70 जायके होंगे, दूसरा लुकमा खाएगा दूसरे 70 अलग के जायके, तीसरा लुकमा खाएगा तीसरे 70 अलग के जायके। हर लुकमे में 70 अलग अलग के मुख्तलिफ जायके मौजूद होंगे। जन्नत तो वो है शमए रिसालत के परवानों, अल्लाह उसकी तैयारी की और उसका यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। बात लोग कहते हैं क्या किसी ने देखा है, कितना देख पाते हम, कितनी दिखाई पड़ती है बात चीजें, कितनी आंखें काम करती हैं। 300 मीटर तो देख नहीं पाते, मोबाइल देखते देखते तो 200 मीटर तक देखना मुश्किल हो रहा, दूभर हो रहा, वहां तक कोई देख लेगा। जन्नत तो देखा है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर है मौलाना इब्राहिम साहब कि उम्मत को रोज़ महशर, उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़ महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। अभी कुछ देखने बाकी रहा भैया, कितना देख पाते हो हमको तो दूरंदेशी नहीं दिखाई पड़े, क्या बताएं भाई। ये सारा का सारा मौजूद होगा। और जन्नत के बाग के बीचों बीच में नहरें जारी हैं। क्या चीज भैया, नहरें जारी हैं। कौसर और तस्लीम की नहरें, बेहतरीन नहरें जारी, जिसमें दूध की नहर अलग हो जाएगी, शहद की भी नहर है, दूध और शहद की, और शराबन तहूरा की नहर है। अल्लाह इस नापाक दुनिया से बचा ले। जन्नत में जब कोई शराबन तहूरा पिएगा उसका जहन दिलो दिमाग खुल जाएगा, रोशन हो जाएगा। जब यहाँ छोड़ोगे तब वहाँ मिलेगा, जब यहाँ छूटेगी ये नापाक चीज तब वहाँ पाक चीज मिलेगी। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जन्नत के चारों तरफ, उस नहर के चारों तरफ बच्चे फैले हुए हैं, जैसे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया मंसूरा, जैसे सफेद मोतियां बिखेर दी जाए,
सफेद मोतियों को जब बिखेरा जाए, छोड़ दिया जाए, बड़ा खुशनुमा मंजर होता है। ये सारी चीजें वहां मौजूद होंगी। जन्नती मसीरी पर टेक लगाए हुए बैठा हुआ, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक, टेक लगा के बैठा हुआ, सोने का डंडा हाथ में होगा। अब जन्नती के दिल में आएगा, न तो हम डंडा ही से फल को तोड़ेंगे, ना इस फल को गिलमान से तोड़वाएंगे, और न ही हूरों का सहारा लेंगे तोड़ने के लिए। बहुत लंबा लंबा भी होगा, उसकी डालें झुकी होंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वदानियतन अलैहिम जिलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, जिसकी टहनियां, जिसकी डालें लचकी हुई होंगी, चाहो तो हाथ से तोड़ लो, जितना चाहो उतना करीब आ जाए। जन्नती सोचेगा, ना मैं अपने डंडे से तोड़ूंगा, ना डंडा फेंक कर तोड़ूंगा, ना हूरों से तोड़वाऊंगा, ना बिलमान से। 80-80 हजार बिलमान अल्लाह अता फरमाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लुअलुअम मंसूरा, जैसे सफेद मोतियां हो बिखेर दी जाए, कितना खुशनुमा मंजर होगा। जन्नती के घर नहीं, न मैं हूरों से तोड़वाऊंगा, ना बेईमान से, ना अपने हाथ से तोड़ूंगा। और अल्लाह ने पहले से वादा कर रखा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो तुम्हारे जी में आए सब वहां मौजूद मिलेगा। 1 मिनट की बात जरा मौजूद से ताल्लुक रखती है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को समझ अता फरमाए। कपड़ों की बड़ी भूखी रहती हैं। कोई आदमी 50,000 रुपया जेब में रख करके मार्केट ले जाए, बाजार ले जाए, और उनसे कहते जो चाहो जितना चाहो कपड़ा तुम्हारे लिए खरीद कर दे दूंगा, तो 50,000 अलग से रख के ले जाओ, कपड़ा पैसा घटवे करेगा। अरे बोलो भाई, कोई कहे कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक, समझा पूरा झूठा आदमी है। और कहीं सर्राफे दुकान पे चले जाओ, जहां जेवरात बिकते हैं सोने चांदी के, तो समझ जाओ कि घरों बेचो तभी पूरा। अगर कोई 2 किलो का थैला टंगवा दे, मोहतरमा थैला पकड़े लेते, चलो हमारे हाथ में दूसरा सामान, तो कहते बहुत वजन है, बड़ा बोझल वैसे सामान, बड़ा वजन है। और अगर 5 किलो का सोने का जेवर गले में डाल दो तो बड़ा हल्का लगेगा। बहुत पक्की होती है जेवर की, बड़ी कपड़ों की और जेवरात की बड़ी शौकीन होती है। अल्लाह हमारी माँ बहनों पे रहे फरमाए। दुनिया में ज्यादा ख्वाहिश न करो, साल में ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़े लिया करो, हैसियत कम है तो 1 ही जोड़ा लिया करो। ज्यादा जोड़े ओड़े मत लिया करो, ज्यादा जोड़े न लिया करो। अल्लाह वहां जोड़ा अल्लाह